Good morning, students. Today we will be starting sixth chapter of your history book, which talks about kingdoms, kings, and an early republic. I have noted down some topics which we are going to cover in this particular video. We will be taking the chapter in two sessions, and in this particular video, we will understand how some men became rulers, what was the procedure, how they were selected, and here comes the importance of Ashwamedha Yajna, a sacrifice which was being made by the kings. We will understand what this Ashwamedha Yajna was. Then we will study about the classification of people in the society which comes under the categories of Varnas. We will relate how the present day system of elections of choosing our representative is different from the ways in which the rulers were chosen in that era. And then we will be focusing on Janpadas and Mahajanpadas. We will be taking up to the point Mahajanpadas. We will understand what was Janpadas and how they gradually became Mahajanpadas. So the lesson starts with the Shankran, like he woke up to see his grandparents all ready to go and vote. वो देखता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो वोट करने के लिए तैयार हैं. दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ. वाई? शंकरन वॉन्टेड टू नो, were they so excited? Some word impatiently his grandfather explained, we can choose our own rulers today. तो वो मतलब this little boy शंकरन was surprised कि क्या इतनी उत्सुकता है उसके दादा दादी को, ग्रैंड पेरेंट्स को जाने में, कि वो इतने उत्सुक क्यों हैं. तो वो बोलते हैं, उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, वी कैन चूज आवर रूलर्स टुडे, हम अपने खुद के नेता जो हैं वो चुन सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक चुन सकते हैं. तो दिस राइज अ क्वेश्चन इन हिज माइंड कि हाउ किंग्स वर लाइक चोजन इन द अर्लियर एरा, किस तरह से जो थे राजा चुने जा सकते थे. So we will be reading this portion from the book also, and I will be explaining you meanwhile. I trust you all have your books along with you. So let's begin how some men became rulers. Choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last 70 years, that is since our independence. How did men become ruler in the past? Some of the Rajas we read about in chapter 5 were probably chosen by the Jana. जना शब्द से, राजा शब्द से आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो. लास्ट चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि किस टाइप के राजा होते थे उस टाइम पे, उस एरा में. लाइक एट दैट टाइम ऑफ पीरियड किंग्स वर नॉट हैविंग देयर पैलेसेस, दे वर नॉट मेंटेनिंग बिग आर्मीज, दे आर लाइक लीडर्स, जिसको हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. उस तरह से हम उनको ले सकते हैं, जो खेती बाड़ी के लिए खेती बाड़ी भी करते थे और उसमें उससे अपना जो है वो बेसिक जो भी बाहर पोर्शन है वो अपना किया करते थे. तो these things we are talking about are around 3000 years ago. Now let us find out how the Rajas were chosen in that period of time. Men were chosen as राजाज by performing very big sacrifices. एक तरह की sacrifice जो करता था इंसान, उसको वो राजा चुन लेते थे. ये sacrifice करने के लिए स्पेशल जो है क्वालिटी चाहिए थी. क्या स्पेशल क्वालिटी चाहिए थी? लेट्स रीड अबाउट द अश्वमेधा यज्ञ, या जिसको हॉर्स सेक्रीफाइस बोलते हैं. एक ऐसा ही रिचुअल्स था विच वॉज यूज टू आइडेंटिफाई अ राजा, जो कि एक राजा को चुनने में मदद करता था. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस अश्वमेधा यज्ञ और द हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज. A horse was let loose to wander freely, and it was guarded by the Raja's men. एक जो भी लीडर होता था किसी भी पर्टिकुलर एरिया का, जो या जिसको हम राजा बोलते थे सिंपल शब्द में, वो अपना एक घोड़ा जो है वो फ्री छोड़ देता था और उसके साथ वो राजा के कुछ सिपाही जो थे उस घोड़े के साथ साथ जाते थे. जहां भी वो घोड़ा जाना चाहता था वो वहीं जाता था. इफ द हॉर्स वेंडर्ड इनटू द किंगडम ऑफ अदर राजाज एंड दे स्टॉप्ड इट, then they had to fight.
If they allowed the horse through course, it meant that they accepted that the Raja who want to perform the sacrifice was stronger than them. These Rajas were then invited to the sacrifice. Like क्या होता था कि घोड़ा छोड़ दिए, सिपाही छोड़ दिए, अगर उनके एरिया से निकल के जब किसी और राजा के एरिया में गया, उसने प्रोटेस्ट किया, देन दैट राजा हैज टू फाइट. अगर वो हार गया तो इंक्लूड हो जाएगा, अगर जीत गया तो बात ही खत्म हो जाएगी. और अगर कोई राजा इजीली मतलब देखता है कि यस ये तो पावरफुल बंदे का या किंग का जो है, दिस हॉर्स बिलोंग्स टू हिम एंड ही गेट्स स्केयर्ड और विलिंगली ही लेट दैट हॉर्स पास थ्रू हिज रीजन, देन इट विल कंसिडर कि यस ही हैज लाइक टेकन द custodian of that particular the brave king, and then he was invited to that sacrifices with great respect. अब ये जो sacrifice इस तरह से आपको पता लगा किस तरह से वो राजा जो था वो इंसान राजा चुन लिया जाता था. उस एरिया का भी राजा हो गया जहां से वो हॉर्स क्रॉस हो गया, आइदर वो क्रॉस हुआ युद्ध करके जीत के या वो अपनी विलिंगनेस से हो गया. तो इस तरह से राजा बन जाते थे. अब जब ये यजन होता था, ये तो होता था, दीज राजाज वर देन इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस. जिन राजाओं ने अपनी मर्जी से हॉर्स को निकलने दिया अपने एरिया से, उनको आप इनवाइट करते थे. वहां पर एक यज्ञ होता था, एक हॉर्स सैक्रिफाइस होता था, विच वॉज परफॉर्म बाय स्पेशली ट्रेन प्रीस्ट हु वर रिवाइडेड विद गिफ्ट्स. हमेशा प्रीस्ट जो होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, उनको रिवॉर्ड्स भी दिए जाते थे, ये जो वो अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते थे. द राजा हु ऑर्गेनाइज द सैक्रिफाइस वॉज रिकॉग्नाइज एज बीइंग वेरी पावरफुल एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट्स फ्रॉम हिम. वो सब जितने भी बाकी आते थे उस यज्ञ में पार्ट लेने के लिए, वो उसके लिए गिफ्ट्स लेके आते थे. द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स. ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थॉर्न और अ टाइगर स्किन. His charioteer, who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits, यानी कि जब वो युद्ध पे गया था तो उसका जो सारथी था, जो उसका रथ चला रहा था, उसका काम होता था उस सभा में राजा की ग्लोरी, विजय गाथाओं को सुनाना. और राजा के जितने रिलेटिव होते थे, स्पेशली उसकी वाइफ एंड सन्स, हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स. वो राजा के साथ बैठ के उस पूजा में कुछ कुछ छोटा छोटा काम करते थे. द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स. जितने भी जीते थे राजा या जितने भी मतलब विलिंगली पास करने दिए गए, जिनसे वो पावरफुल है मेन राजा, वो बस बैठ के तमाशाबीन बन के सिर्फ देखते थे. वो मेन जो काम था प्रीस्ट परफॉर्म कराते थे और राजा वो सब करता था. कब बीच बीच में उसकी वाइफ और बेटे भी करते थे. और द ऑर्डिनरी पीपल जो होते थे, जो लोग होते थे, प्रजा होती थी उनकी, जिनको हम वैश्य बोलते हैं या विश बोलते हैं, वो भी गिफ्ट्स लाते थे. हाउएवर सम पीपल सच एज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रास बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेनी रिचुअल्स. शूद्रास जो होते थे, जिनको लो कास्ट समझा जाता था, अछूत समझा जाता था, उनको ऐसे रिचुअल्स में नहीं बुलाया जाता था. तो यहाँ पर आपने 3 वर्ड सुने, किंग जो वॉरियर हैं, प्रीस्ट जो ब्राह्मण है जो पूजा कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने वैश्य का नाम भी सुन लिया जो ऑर्डिनरी पीपल है, और शूद्र जो उनको बहुत ही डिस्कार्ड किया गया है, जिनको सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा लो रखा गया, उनको भी आपने देख लिया. तो यानी कि हम पढ़ते हैं वर्णास के बारे में. वर्णा क्या थी? कैटेगराइजेशन था सोसाइटी का ऑन द बेस ऑफ बर्थ, और बर्थ के अकॉर्डिंगली उनका काम उनको स्पेसिफाइड था कि वही काम उनको करना है जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया. यानी कि वर्णा वॉज डिवाइडेड बेस्ड ऑन द बर्थ. So let's read out on page number 55. It's page number 55 in my book. Maybe it may be something else in your book, because there is difference between new and old book. So please be on the portion which states about Varnas. We have many books that were composed in North India, especially in the area drained by the Ganga and the Yamuna during this period. These books are often called later Vedic because they were composed after the Rig Veda, about which you learn in chapter 5 in detail. These include Samaveda, Yajurveda and Atharveda, as well as other books. These were composed by priests and described how rituals were to be performed. They also contain rules for society. अब इन्हीं बुक से हमें पता लगता है कि देयर वर सेवरल ग्रुप्स इन द सोसाइटी एट दैट टाइम्स. लाइक प्रीस्ट थे, क्षत्रिय थे जो युद्ध करते थे, किसान थे, चरावा थे, व्यापारी थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, मजदूर थे,
मछुआरे थे, इस तरह के बहुत सारे लोग थे. Some priests and warriors were rich, as were some farmer and traders. Other including many herders, craft persons, laborers, fish folks and hunter gatherers were poor. अब प्रीस्ट के अकॉर्डिंगली सोसाइटी जो थी वो 4 वर्णा या 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, और हर वर्ण का अपना एक सेट ऑफ फंक्शन था. उनको वही काम करना होता था जिस कुल में वो पैदा हुए. लाइक द फर्स्ट वर्णा वाज दैट ऑफ ब्राह्मण. Brahmin was expected to study and teach the Vedas, perform sacrifice and receive gift. उनका ये काम था. और ब्राह्मणों ने, प्रीस्ट ने ब्राह्मणों को सबसे ऊपर की कैटेगरी में रखा हुआ था. इन द सेकेंड प्लेस देयर वर रूलर्स, राजा थे जिनको क्षत्रिय बोलते थे, जिनका धर्म लड़ाई करके अपनी प्रजा को की देखभाल करना है और अपने क्षेत्र को बढ़ाना है. दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल एंड प्रोटेक्ट पीपल. Third were the Vish or Vaishyas. They were expected to be farmers, herders and traders. Both the Kshatriyas and Vaishyas could perform sacrifice. दोनों करवा सकते थे sacrifice, मतलब राजा भी और जो ordinary people थे वो भी, लेकिन limitations थी, specification उसमें भी थी. Last were the Shudras who had to serve the other 3 groups and could not perform any rituals. ठीक है. Often women were also grouped with the Shudras. Both women and Shudras were not allowed to study the Veda. मतलब वुमेन और शूद्रास को वेद पढ़ने की इजाजत नहीं दी थी और उनको लो या सब कैटेगराइज किया जाता था. The priest also said that these groups were decided on the basis of birth. For example, if one's father and mother were Brahmin, one would automatically become a Brahmin and so on. Later on, they classified some people as untouchable. उसके अंदर उन लोगों को who perform burials, cremations, यानी जो दाह संस्कार करते थे, उन लोगों को जो था इस शूद्रास में रखा गया, या जो गन साफ करते थे उनको शूद्रास में रखा गया, कि उनको ऐसा बोला गया कि they can pollute you if you even touch them. तो many people जो थे ये सिस्टम वर्णा के जो नहीं मानते थे, स्पेशली किंग्स जो थे, thought that they were superior to the priest. इस बात पे उनका विवाद रहता था. Or other felt that birth could not be the basis for deciding which varna people belong to. Besides, some people felt that there should be no difference amongst people based on occupation. Other felt that everybody should be able to perform rituals, and some other condemned the practice of untouchability. तो बहुत आप देख रहे हो कि डिफरेंट माइंडसेट के पीपल हैं, बट जो प्रीडोमिनेंटली जो सिनेरियो था सोसाइटी के अंदर, दैट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्णास इनटू 4 सेक्ट्स. वो था. हालांकि लोग उसको अपोज भी कर रहे थे, उसको नहीं भी मान रहे थे, बट फिर भी आप ये ध्यान में रखिए कि उस टाइम पे वर्णा जो थे वो 4 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है. तो यहाँ पर हमने अंडरस्टैंड किया कि कुछ क्षत्रिय थे वो किस तरह से रूलर बन जाते थे, वो कैसे अश्वमेध यज्ञ करके, क्या अश्वमेध यज्ञ था, और इसी से हमें समझ आता है इन व्हाट वे इज द प्रेजेंट डे इलेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द वे ऑफ चूजिंग द रूलर्स एट दैट एरा ऑफ टाइम. वो बल के हिसाब से होता था. आज हम जिस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं वहां पर सबको वोट के अकॉर्डिंगली, in respect of any kind of social, economic, any kind of difference, we all have the right to vote. We can choose our own representative. And वहाँ पर उस टाइम ये रूल नहीं था. वहाँ पर अपने बल के हिसाब से जो साबित कर देता था उसको जो है रूलर जो है मान लिया जाता था. Now next we need to study about the classification of जनपदास and महाजनपदास in this chapter. हम जनपदास और महाजनपदास को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमने अभी तक पढ़ा था कि राजा महल में नहीं रह रहा था, किस तरह क्या जनपद थे और फिर कैसे वो ट्रांसफॉर्म हुए महाजनपदास में, और क्या डिफरेंस रहा जनपदास और महाजनपदास के बीच में, क्या रीजंस थे, क्या सपोर्टिव थिंग्स आई, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ना है. हम एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस हुए वो भी पढ़ेंगे. फिर उसके बाद हम 2 केस स्टडीज भी देखेंगे जो कि मगधा और वज्जी के बारे में होगी, और उससे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. बट नाउ लेट्स फोकस ऑन जनपदास. लेट्स स्टार्ट विद जनपदास. दिस इज पेज नंबर 56 इन योर बुक, राइट? सो इट सेज that the Rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being Raja of Janpadas rather than Janas.
यानी इन्हीं आम लोगों में से, जन में से एक व्यक्ति जिसने अपने बल को स्थापित किया, जिसने ये अश्वमेध सैक्रिफाइस कर दिया, उसको हम रिकॉग्नाइज करने लगे एज अ राजा। द वर्ड जनपदा लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट हिज फुट एंड सेटल डाउन, यानी कि जिस जगह पर लोग रह रहे हैं उनको हम जनपद बोल रहे हैं। जनपदा जो है दो शब्दों से मिलके बना है, जन और पद। जन मतलब लोग और पद मतलब पैर, जहां पर उन्होंने अपने पैर जमा लिए या सेटल हो गए, तो दैट इज नोन एज द जनपदा। अगर आप पेज नंबर 4 देखेंगे, मैप नंबर 4 देखेंगे पेज 57 पे, तो आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जनपदा भी दिखाई दिए जाएंगे, जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जब बहुत सारे एक्सक्लेवेशंस किए तो दे कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ सेटलमेंट्स एंड द जनपदा सच एज पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ and Atranji Khera near Etawah, that is in Uttar Pradesh, are like these are known जनपदास। तो आपको एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है कि नेम द इम्पोर्टेंट जनपदा या मार्क द इम्पोर्टेंट 3 जनपदास ऑफ दैट एरिया। तो आपको पता होना चाहिए कि पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंजी खेरा नियर इटावा, दैट इज इन उत्तर प्रदेश। तो जब एक्सक्लेवेट किया गया तो इसके अंदर से हमें बहुत सारे राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसम और मस्टर्ड की वेराइटी होने का भी पता लगा। तो क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है, नेम द क्रॉप्स विच आर grown during the period of janpadas. So you should say that rice, wheat, pulses, sugarcane, sesame and mustards are some of the crops which were grown during the time of janpadas. Now on this page you will see a grey ware. एक ग्रे बर्तन आपको दिख रहा है। प्लेट्स एंड bowls are the most common vessels made out of painted grey ware. These are extremely fine to touch with a nice smooth surface. Perhaps these were used on special occasions for important people to serve special quality. इस तरह के भी हमें वहाँ से चीजें मिली हैं और हम ये एनालाइज करके ये कंक्लूजन पे निकले हैं कि वो कुछ स्पेसिफिक या स्पेशल लोगों के लिए ही यूज किए जाते होंगे। बाकी जो थे ग्रे वेयर नहीं थे, देवर अर्दन पॉट्स, मिट्टी के बर्तन थे। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, अदर वर रेड। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोएट्री फाउंड एट दीज साइट इज नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर, राइट। ये मैंने आपको बता दिया, कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स या लाइंस उसके ऊपर बनी होती थी। नाउ लेट्स कम ऑन Mahajanpadas. Later, kings wanted to show their supremacy, so Janpadas replaced the by the Mahajanpadas. यानी कि जब राजाओं की ऐसे इनकम बढ़ गई या अपनी शक्ति का शो ऑफ करने के लिए, अपनी पावर का शो ऑफ करने के लिए धीरे धीरे उन्होंने चेंजेस किए इन जनपदास में और वो महाजनपदा के रूप में अब उभर के आए। तो if I put in points, there are 4 main points by which the janpadas are converted into Mahajanpadas. That now the kings have their own palaces or forts. राजाओं ने अपने किले या महल बनाने शुरू कर दिए। Secondly, they started maintaining army. और इन अपने क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए दूसरा कोई आके कब्जा ना कर ले, इस वजह से दे स्टार्टेड मेंटेनिंग आर्मी। उन्होंने आर्मी बनानी और रखनी शुरू कर दी। आप कहोगे जी अच्छे अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तब भी आर्मी थी। इस स्केल पे आर्मी नहीं थी उस टाइम भी, युद्ध वो कर रहे थे, लड़ रहे थे, लेकिन जिस स्केल की आर्मी महाजनपदास में रखी जाने लगी, जो उसका रेवेन्यू दिया जाने लगा रेगुलर, दैट इज द मेन डिफरेंस। Now this army is paid regular salary. युद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा, आप उसको रेगुलरली रख रहे हो, रेगुलरली उनको you are paying them salary, and to pay this regular salary they started to leave taxes. उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया टैक्सेस का और किस लिए जरूरत पड़ी टैक्सेस की, ये चीज समझने वाली है। तो लेट्स रीड अबाउट महाजनपदास। About 2500 years ago, some janpadas became more important than others and were known as Mahajanpadas. जिन्होंने वेल्थ ज्यादा एक्वायर कर ली, जिन्होंने मिलिट्री पावर ज्यादा बढ़ा ली, जिन्होंने फोर्ट्स और पैलेसेस ज्यादा बिल्ड कर लिए, वो महाजनपदा के रूप में उभर के आए। एंड मोस्ट महाजनपदा हैड अ कैपिटल सिटी
Many of these were fortified, यानी सबने अब कैपिटल का कॉन्सेप्ट आ गया, राजधानी बनानी शुरू कर दी और इसको फोर्टिफाइड करना शुरू कर दिया. फोर्टिफाइड मतलब किलाबंदी करनी शुरू कर दी, दीवारें बनानी शुरू कर दी बड़ी बड़ी उस एरिया के आसपास, चाहे वो पहले लकड़ी की बनाई, फिर ब्रिक या स्टोन्स की बनाई, लेकिन एक किला टाइप उन्होंने बनाना दिया. Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. That is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by really building something very large, tall and impressive walls around their cities. Also in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. So these are the main reasons why they start making the forts or start making the fortified cities. So building such huge walls required a great deal of planning. और आप जब देखते हैं एक्सक्लेवेशन में जब हमें ऐसी cities मिलती हैं तो we are really filled from awe how intensive planning these people have done. बहुत ही अच्छी planning उन्होंने की होती थी. Thousands if not lakhs of bricks or stones had to be prepared. This in turn meant enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children, and resources has to be found for all of these things. तो पैसा था, पैसा लग रहा था इन सब चीजों पे और उसी चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है. Now the new rajas now began maintaining armies. Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. Some payments were probably made using punch mark coins, and we will understand about these coins also later in the chapter 9 in your book. But अभी हमारा फोकस रहना चाहिए like what is आज के लिए हमारा फोकस है like what was the how these Jana became special people known as king or rajas. What was the importance of Ashwamedha Yagya? How the process of selection of the representatives were different in this era and in that era. We have taken up Janpadas and we have seen how Mahajanpadas came into picture. So this were all which we were supposed to cover in this particular topic. I will be taking a doubt class later in the day. Prepare with the doubts. Just go through this video and read the particular portion, your chapter till Mahajanpadas, and I would like to have all your doubts in the live session today. That's all for in this video. Bye bye. Take care.